هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. سب سے پہلے تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہمیں آج پھر اللہ کے کلام کو پڑھنے کی سمجھنے کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کرے کم ہے. اور بیش بہا درود و سلام و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 15 ہے، آیت نمبر 16 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ایک بڑا اہم موقع کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ کیا ابھی بھی ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں، اللہ کے خوف سے جو ہے ان کے دل جو ہے ڈر جائیں. وما نزل من الحق کہ اب حق نازل ہو چکا ہے، یعنی قرآن نازل ہو جانے کے بعد بھی کیا ایمان والوں پہ وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کے خوف سے وہ ڈر جائیں. اور کوئی شک نہیں ہے کہ جو پوری بنیاد ہے ایک انسان کی کامیابی کی وہ ہے اللہ کا خوف، جسے ہم عام زبان میں یا قرآن کی زبان میں تقویٰ کہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ سنتے ہیں، ہر بار سنتے رہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے تو انہوں نے بڑے جامع طور پر اس کا ڈیفینیشن دیا. فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد للرحیل. یعنی خوف من الجلیل سب سے پہلا ہے کہ اللہ کا خوف دل میں آ جائے بندے کے، اور یہ وہ خوف ہے جو انسان کو سارے نیک اعمال پر آمادہ کرتا ہے اور ہر برائی سے بچنے کی توفیق دیتا ہے. جب تک انسان کے اندر خوف نہیں آتا ہے وہ صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، صحیح معنوں میں نیکی میں سبقت نہیں کر سکتا ہے اور صحیح معنوں میں برائی سے بچ نہیں سکتا ہے. خود اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں بلکہ یہ وہ آیت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کی نماز کے خطبے میں پڑھا کرتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ آئے الا کہ تم مسلمان ہو. اور خود اس کی تفسیر جو ہے القرآن یفصل بعضہ بعضا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری طاقت ہے. اور یہ خوف جو ہے جو بندے کو نیکی میں آمادہ کرتا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے اور برائی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اس کو توفیق دیتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو بندے کو عمل میں لے آتی ہے. یعنی یوں سمجھے کہ اللہ کا خوف انسان کو اللہ کا خوف یہ تقاضا کرتا ہے کہ بندہ عمل کرے. بہت ضروری ہے اس پوائنٹ کو سمجھنا. جو آج میرا ٹاپک ہے وہ ہے عمل. بہت اہم چیز ہے کہ بندہ اپنے آپ کو عمل میں لے آئے جو کہ صحیح معنوں میں حقیقی ضرورت ہے. خود اللہ رب العزت نے بھی سورہ ملک پڑھی گئی آپ کے سامنے آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ اکبر. کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سب سے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے. the best of the deeds. اللہ اکبر. اور کوئی شک نہیں ہے کہ ہر نماز میں ہم اسی عمل کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں. یعنی بندہ عمل میں آ سکے، اللہ کی حکم پر عمل کر سکے، اللہ نے جس چیز سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچ سکے، اس کی خاص ہم دعا ہر نماز میں اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں. بلکہ اللہ حکم دیتا ہے کہ تم یہ کہو. کیا ہم کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، جو تیرے عمل یافتہ بندے ہیں. وہ کون ہے؟
मिन अन्नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। अल्लाहु अकबर। अब थोड़ा सा जायजा हम लें कि जिनका जिक्र अल्लाह ने किया है, जिनके रास्ते पर चलने का हमें हुक्म दिया है, जिसके लिए हम दुआ करते हैं, आए थोड़ा सा हल्का जायजा लें कि उनका क्या अमल था, उनका क्या रिएक्शन था अल्लाह के कुरान की तरफ, अल्लाह के कलाम की तरफ, और हमारा क्या हाल है। अल्लाह ताला सबसे पहले तो मैं वसीयत करूंगा, अल्लाह ताला मुझे और सबको तकवा की तौफीक अता फरमाए। उसी कुम बेनफ्सी व तक़वल्लाह, अल्लाह ताला हमें सही मानों में तकवा इख्तियार करने की तौफीक दें। सबसे पहले आए जिसमें जिक्र किया है मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीन। नबीन की जब बात आती है तो हमारे लिए सबसे बेहतर उसवा किसका है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उनकी 10 साल जिंदगी जो मक्का की थी हमारे सामने है। हर बंदा जानता है, हर मुसलमान इस बारे में शऊर रखता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मक्का की जिंदगी में कितनी जिद्दोजहद, कितनी मेहनत, और इसी की तरफ जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इशारा भी किया है। सूरह हुजरात हमने अभी हाल ही में हमने तफसीर सुनी थी, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है क़ालतिल अअराबु आमन्ना, कि जब अरब आए जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था वो आके कहने लगे हम तो ईमान लाए। एक होता है ना कलमा पढ़ के नाम का मुसलमान हो जाना, एक होता है अमली मुसलमान जो मतलब अल्लाह को। तो क़ालतिल अअराबु आमन्ना, अल्लाह ने कहा कुल लम तुमिनु, ए नबी इनसे कह दीजिए तुम अभी ईमान नहीं लाए हो, वलाकिन क़ूलू अस्लमना, बल्कि तुम कहो हम इस्लाम लिया है। वलम यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिकुम, अब ईमान अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ है। वइन तुतिउल्लाह व रसूलहू ला यलितकुम मिन अमालिकुम शैआ इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अगर तुम अल्लाह और रसूल की इताअत करोगे तो तुम्हारा अमल में से कोई भी चीज कम नहीं की जाएगी, अल्लाह गफूरुर रहीम है। यानी पता चला कि सिर्फ कलमा पढ़ लेना और इस्लाम की कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेना ये ईमान नहीं है, बल्कि ईमान है सही माने में अल्लाह और रसूल की इताअत पे लग जाना, अमल में आ जाना, तो ये सबसे अहम चीज है। तो यहाँ पर अभी मैं रिलेट करता हूँ कि हम देखें कि उन जिनके रास्ते पर हम चलने की दुआ करते हैं उनका क्या अमल था, जो मैंने अभी बता रहा था मैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखें आप, 10 साल मक्का की जिंदगी हमारे सामने है, जिद्दोजहद, मेहनत, कुर्बानियां, अल्लाह अकबर। उसके बाद 3 साल शेब अबी तालिब में उनका बॉयकॉट, 3 साल इतने सख्त हालात हम जानते हैं, यहाँ तक कि पत्ते खाने की नौबत आ जाती है। यहाँ तक कि रिवायत में आता है कि सहाबा कराम जब जो फारे पैखाना वगैरह करते तो उनके बिल्कुल जैसे बकरी की लिंडिया निकलती है, इस तरह जो है उनके हालात हो गए, इतने टफ सिचुएशन। उसके बाद 10 साल मदीना की जिंदगी, यानी आप देखें हमारे सामने नबी की पूरी सीरत हमारे सामने है। लेकिन अहम चीज क्या है कि अल्लाह ताला हमें नबी की सीरत को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जब बंदा नबी की सीरत पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा सही माना में इस्लाम क्या है और इस्लाम के अंदर कुर्बानी का क्या 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 माना बनता है। इस्लाम ये नहीं कि बस नाम ले लिया, बैठ गए और बस हमने कुछ फॉर्मेलिटी पूरी कर ली और नमाज पढ़ ली और हम कामयाब हो गए। नहीं, इस्लाम है कुर्बानी का नाम बेसिकली, और ये हमें बताती है सीरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यही वजह कि अल्लाह ताला उस कुरान की आयत जो मैंने पढ़ी सूरह हुजरात की, उसके बाद अल्लाह ताला मोमिन की सिफत बयान करते हैं कि हकीकी मोमिन कौन है, वो जो कलमा पढ़ के नाम से मुसलमान है, जो वाकई अमल करके कुर्बानियां पेश करता है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमल मुमिनुल लदीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही, मोमिन तो बस वही है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, तुम लम यरताबू, उसके बाद वो शक नहीं करते हैं अल्लाह के वादों पर, जो है अल्लाह ने जो वादे किए उनके लिए शक नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, वो अमल में लग जाते हैं। कैसे? वजाहिदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह की राह में जिद्दोजहद में लग जाते हैं अपने माल से और अपने जान से। उलाइका हुमुस सादिकून, अल्लाह फरमाते ये वो सच्चे लोग हैं। और ये सच्चे लोगों की बात हम करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले फहरिस्त में आते हैं नबीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे सामने है, उसके बाद सिद्दीकीन। और अब जब सिद्दीक की बात आती है तो सबसे पहला नाम हमारे सामने जो आता है वो है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर। उनकी कुर्बानी हमारे सामने है, आप देखें कितनी जद्दोजहद, कितनी मेहनत, कितनी कुर्बानी है, अल्लाहु अकबर। यानी जितना उनके बारे में कहा जाए कम है। हर मरहले में जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ जो है उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। उसके बाद जो है मैं मुख्तसर चल रहा हूँ, वो शोहदा, अल्लाह अकबर। आप जानते हैं शोहदा का जब नाम लिया जाए सबसे पहले किसका नाम हमारे जहन में आता है? सैयदुश शुहदा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जंग उहद में जिनको शहीद किया गया, अल्लाह अकबर। उनकी कुर्बानी हमारे सामने आती है मेरे भाइयों। और उसके बाद सालिहीन, नेक लोगों में तमाम सहाबा इकराम जो है शामिल हो जाते हैं,
जिनकी फहरिस्त करो तो कम है। कोई ऐसा सहाबी नहीं मिलेगा मेरे भाई जिसने अपने आप को अमल में आगे नहीं किया हो, जिसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो मेरे भाई पढ़ते रहेंगे, उसकी हिस्ट्री खत्म नहीं होगी। हर सहाबी के बारे में आपको कोई ना कोई कमालात मिलेंगे, उनके अमाल एक से एक अमाल के बारे में आपको मिलेगा। और अगर थोड़ी सी तफसील लें आप, तो आप याद कीजिए मेरे भाई, सबसे पहले जो शहीदा हुई हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और उनके शौहर यासिर, उनकी कुर्बानी को याद करें मेरे भाई। किस तरह उन्होंने इस्लाम जब कबूल किया तो उसके बाद जो जज्बा उनके अंदर था कि उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। और आगे बढ़े मेरे भाई तो आप देखें हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, गरम रेत पर उनके ऊपर बड़ा बड़ा पत्थर रख के जो है उनको कहा गया कि दिन से हट जाओ, वो नहीं हटे। खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, याद करें उनको मेरे भाई, उनकी कुर्बानी याद करें। वो लोहार के यहाँ काम किया करते थे, जब इस्लाम कबूल किया तो उसी गर्म कोयले के ऊपर उनको सुलाया जाता था, और रिवायत में आता है कि उनकी पीठ की चमड़ी जो है पिघल के कोयलों को ठंडा करती, तब जाके वो फारिग होते उससे। इसके साथ साथ माल की कुर्बानी किसने दी? शुएब रूमी को याद कीजिए रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके पास माल था मक्का के अंदर, उनको पकड़ लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, फरमाया नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। आखिर उन्होंने कहा कि मेरे पास माल एक जगह पर मैंने छुपा के रखा है, वो माल ले लो, मुझे छोड़ दो। अपने सारी मेहनत, सारी जिंदगी की मेहनत को उन्होंने दे दिया उनको, और वो मदीना के लिए रवाना हो गए जब हिजरत का वक्त आया। अबू सलमा के बारे में बड़ा मारूफ है कि जब वो हिजरत करने लगे अपनी फैमिली के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ में, उनको रोक दिया गया। जो उनकी अहलिया थी, उनके घर वाले आ गए, उनके अहलिया को उनसे छीन लिया गया, उनके मालो दौलत को उनसे छीन लिया गया, सब कुछ उनसे छीन लिया गया। यानी अहले खाना छूट गई, बच्चे छूट गए, सब कुछ छूट गए, लेकिन अल्लाह के लिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बल्कि सब कुछ छोड़कर अकेले हिजरत की मदीना के लिए। कितने किस्से मेरे भाई हमारे सामने, साहबा इकराम की लिस्ट खत्म नहीं होगी मेरे भाई, कि अमल में उन्होंने किस तरह अपने आप को फ्रंट पे रखा है एकदम। खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत खुबैब, अल्लाहु अकबर, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया मुशरिकीन मक्का ने, और उनको जब सूली पर चढ़ा के उनको एक एक करके उनके गोश्त की बोटी निकालना शुरू किए, और किसी ने कहा कि क्या तुम ये उम्मीद करते हो कि इस वक्त तुम्हारी जगह पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, मोहम्मद तुम्हारी जगह पर, क्या तुम ये उम्मीद करते हो? फरमाया मेरी जगह पर तो होना बड़ा दूर है, मैं ये कभी तमन्ना ना करूंगा कि मेरे नबी के पैर में कांटा भी चुभे। अल्लाह अकबर, अपनी जान की कुर्बानी दी, एक एक टुकड़ा उनका काटा गया मेरे में। खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बेशुमार कुर्बानियां मेरे भाई, किसकी मैं कुर्बानी पेश करूं। मुसअब बिन उमैर, अल्लाह अकबर, अपनी माँ के चहीते, इस्लाम कबूल किया, सारा कुछ छोड़ दिया, ठाट बाट, वो रोज के कपड़े बदलना, वो खुशबू का बदलना। जब मेरे भाई जब उनका उनका वो शहीद हुए, वो शख्स जो रोज नए कपड़े पहनता था और रोज नई खुशबू लगाता था, जब वो शहीद हुए, अल्लाह अकबर, तो उतना कपड़ा भी नहीं था कि उसको पूरा ढका जाए। अगर सर ढांपते तो पैर खुला रह जाता, और पैर ढांपते तो सर खुला रह जाता। आखिर जो उनके सर को ढांप दिया गया, और पैर पे घास जो है वो डाल के उनको दफना दिया गया। अल्लाह अकबर, मेरे भाई ये कुर्बानियां थी हमारे असलाफ की, साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन। यही वजह है कि उनको खिताब मिला रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदुअन, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह, अल्लाह ताला आगे फरमाता है कि वो लोग हैं जो अल्लाह से डरते हैं। और इनके बारे में, साहबा इकराम के बारे में तो मेरे भाई कुरान करीम में बेशुमार आयतें अल्लाह ने फरमाई हैं, बल्कि उनके बारे में तारीफ करते हुए अल्लाह फरमाता है युतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजीला, ये तो वो साहबी है, ये साहबा इकराम है कि अमल करते हैं, रात में क़याम करते हैं, दिन में जिहाद करते हैं, अपना माल सदका खैरात करते हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी डरते हैं कि अल्लाह हमारा अमल कबूल करता है कि नहीं करता है। ये उनका खौफ, अमल करने के बावजूद मेरे भाई। जरा सोचे आप मेरे भाई, और हमारा मामला क्या है? थोड़ा सा हम कंपेयर करें कि हमारी पोजीशन हम देखें आज। अल्लाह अकबर, वल्लाह कहते हुए बड़ा अफसोस भी होता है, शर्मिंदगी भी होती है। आज अल्लाह की तौफीक से इल्म हमारे इर्द गिर्द है, उलमा इकराम हमारे इर्द गिर्द में है, फिंगर टिप पे हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल। व्हाट्सएप पर हमारे दीनी मजालिस, दीनी प्रोग्राम होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। हर वो चीज जो एक इंसान को अमल करने पर आमादा कर सकती है आज अवेलेबल है। लेकिन वजह क्या है कि सारा कुछ होने के बावजूद एक चीज में एक इंसान मुसलमान नजर आता है, इल्ला माशा अल्लाह, वो है अमल। कुरान हम पढ़ते रहते हैं, कुरान हम सुनते रहते हैं, हदीसों को पढ़ते रहते हैं, हदीसों को सुनते रहते हैं, क्लासेस हमारी चल रही होती है, दुरुस हमारे चल रहे होते हैं, बेशुमार जगह पर हम मसरूफ अपने आप को रखते हैं। लेकिन जब अमल की बारी आती है तो फिर हमें अपना गिरेबान जाग कर देखना चाहिए कि हम अमल में कितने हैं।
میرے بھائی علم تو وہ فائدے مند ہے, وہ نفع بخش ہے جو عمل کے ساتھ ہو. علم کا تقاضا ہے کہ عمل کیا جائے, اللہ کے خوف کا تقاضا ہے کہ عمل کیا جائے. اگر ہم عمل نہیں کرتے میرے بھائی تو یقین مانے سارا علم ہمارے لیے وبال جان ہے قیامت کے دن. کیونکہ آپ جانتے ہیں وہ حدیث بڑی معروف ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال قدم عبد حتى يصل الاربع, بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک 4 چیزوں کا جواب نہ دے دیں, اور ایک روایت میں 5 چیزوں کا جواب نہ دے دیں. ان عمر فيما افنا, تمہیں جو عمر دی گئی تم نے کہاں لگائی, تمہیں جو عمر دی گئی تم نے کہاں لگائی. وان علمه فيما فعل به, اور دوسری بات میں علمه فيما عمل به, جو تمہیں علم دیا گیا, جو تم نے علم حاصل کیا قرآن کا حدیث کا, جو کچھ تم نے علم حاصل کیا تم نے اس کا کیا کیا, تم نے اس پہ عمل کیا کہ نہیں کیا. عمل, اللہ اکبر میرے بھائی, عمل بہت ضروری ہے. علم کم ہو مگر عمل کے ساتھ ہو وہ بہتر ہے کہ علم زیادہ ہو مگر عمل نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب اعمال الی اللہ صاحب ترجمہ کر دیتا ہوں میں کہ اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو بندہ ہمیشہ کرتا رہے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. بولو بقل, اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو بندہ تھوڑا ہی کیوں نہ کرے مگر ہمیشہ ہو. یعنی اللہ کو زیادہ نہیں چاہیے, تھوڑا چاہیے مگر وہ ہمیشہ کیا کرتا رہے بندہ. یعنی اللہ کو کوالٹی چاہیے, کوانٹٹی نہیں چاہیے. بہت ضروری ہے میرے بھائی اس پوائنٹ کو ہم سامنے رکھیں اور ہمارا اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کس پوزیشن پر ہیں. آج اللہ معاف کرے ہماری طرف سے الا ماشاء اللہ ہم شیطان ہمارے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ دیکھو ماشاء اللہ ہم تو درس بھی سن رہے ہیں, ہم تو آن لائن کلاسز بھی چلا رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, اتنے مصروفیات ہیں, اس سے زیادہ کیا کریں ہم. جیسے وہ عرب نے آ کے کہا نا جب کہ یا رسول اللہ ہم اتنی تکلیف میں تھے, اتنی مشکل میں تھے, پھر بھی ہم نے اسلام قبول کیا. یعنی ہم تکلیف میں تھے, بڑی مصیبت میں تھے, بڑی مشکل میں تھے, اس کے باوجود ہم نے اسلام قبول کر کے آپ کی طرف ہم نے ہاتھ بڑھایا. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے اسی سورۃ حجرات میں. اس سورۃ حجرات کی آیت میں پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے. اللہ فرماتا ہے یمنون علیک ان اسلموا, اے نبی کیا یہ تمہارے سامنے اسلام لانے کا احسان جتا رہے ہیں. بل اللہ یمن علیکم, بلکہ اللہ کا احسان ہے جو تم پر کیا اس نے, ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین, کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو تو. میرے بھائی یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا, اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. میرے بھائی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ شیطان بالکل ہمارے دل میں نہ ڈالے کہ ہم تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں, دروس بھی سن رہے ہیں, آن لائن کلاسز بھی چلا رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں. میرے بھائی جتنا ہم کر رہے ہیں کم ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے میرے بھائی کہ اس ساری چیزوں میں ہمارا عمل ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ ہم کتنے اللہ کے قریب جا رہے ہیں, اللہ کے کتنے احکام پر عمل کر رہے ہیں اور کتنے گناہوں سے ہم بچ رہے ہیں. آج ہمارے میرے بھائی آپ نوٹ کریں کہ اتنے نالج ہونے کے باوجود بھی ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں اللہ ماشاء اللہ ہم کتنی چیزوں میں کمپرومائز کر لیتے ہیں. اب اسی قرآن کی آیت کو لے لیں جو میں نے بتایا کہ کیا راستہ تھا نبیوں کا, صدیقین کا, شہداء کا, صالحین کا. اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا دعا کرتے ہیں, ان کی میں نے قربانیاں بتایا آپ کو جو ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ. چھوٹی سی بات آ جائے ہمارے سامنے کوئی, اب مثال تو بے شمار ہے لیکن چھوٹی چھوٹی مثالیں لے لو. یعنی کوئی داڑھی کی بات کر لیں, یا کوئی ٹکنوں سے اوپر کپڑا پہننے کی بات کر لیں, یا سود سے بچنے کی بات کر لیں, یا اور ایسی بے شمار بیماری جو ہمارے معاشرے میں ہے اس کی بات کر لیں, تو فوراً ہم کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں. نہیں مجبوری ہے, حالات ہے, حکمت کا تقاضا ہے. اللہ اکبر. عورتوں بہنوں کا معاملہ ہے, پردے کی بات کر لیں تو اس میں بھی جو ہے تقوی کی بات آ جائے, تقوی دل میں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. میرے بھائی وہ واقعہ میں آج شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ میں. اللہ اکبر. بنو قینوقا جو مدینہ میں یہودوں کا قبیلہ تھا, اسلام میں جب قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے حجاب کا حکم نازل فرمایا سورہ احزاب میں, اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے, میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. آپ نے یقیناً سنا ہوگا, ایک یاد دہانی کے لیے کہ ہمارے مسلمان اس زمانے کے اسلاف کا عمل کیا تھا. صحابہ کرام کا میں نے بتایا آپ کے سامنے, یہ صحابیہ کا عمل دیکھیں جو اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی, کوئی کالج یا ایجوکیشن کا معاملہ نہیں تھا ان کے پاس صرف کلمہ تھا لا الہ الا اللہ, جس کو وہ سمجھتے تھے اور اس کے مطابق عمل کرتے تھے. یہ دیکھیں صحابیہ جس نے عمل کر کے دکھایا. یہ جب نازل ہوئی, حجاب کی آیت نازل ہوئی, اس کے بعد کا واقعہ ہے بنو قینوقا کے بازار میں ایک صحابیہ جو ہے نقاب پوش یہودی کی دکان میں جاتی ہے گہنا خریدنے کے لیے, زیورات خریدنے کے لیے. نقاب پوش ہے ماشاءاللہ. اس زمانے میں آپ جانتے ہیں جب حجاب کی آیت نازل ہوئی سورہ احزاب میں, تو عورتیں اپنے اوپر پورا پردہ ڈال دیا کرتی تھی, شروع آگے سے لے کر پوری پیچھے تک. ایک چادر بڑی سی ہوتی تھی جو چہرے کو اور پورے حصے کو ڈھانپ لیا کرتی تھی ان کے.
वो उस दुकानदार के पास जाती है, यहूदी के पास जाती है, कहती है मुझे गहने दिखाओ। तो यहूदी कहता है कोई ठीक है, कोई बात नहीं, अपना चेहरा खोल लो, जरा इत्मीनान से देख लो। कहती है नहीं, मैं चेहरा नहीं खोलूंगी। तो यहूदी एक दूसरे को इशारा करता है, वो इशारा करता है कि उसको पीछे से जो चादर है उसको नीचे कील में बांध दो। तो वो यहूदी जो पीछे होता है, वो खातून जो है, वो साहबिया जो है, वो जेवरात देख रही है, यहूदी पीछे से उसकी चादर को नीचे कील में बांध देता है। जब खड़ी होगी तो चादर खींची जाएगी, चादर खींची जाएगी तो चेहरा खुल जाएगा, चेहरा खुल जाएगा तो हम ताली बजाएंगे कि भाई इतनी सी बात के लिए तुम परेशान हो रही थी। यहूदी के लिए बड़ी मामूली बात थी ये, जैसे आज मुसलमानों के लिए बड़ी मामूली बात, लेकिन फॉर ग्रांटेड, कॉम्प्रोमाइज। मेरे भाई साहबिया का रोल देखें आप, जैसे वो जेवरात से फारिग होती हैं, वो खड़ी होती है, उसकी चादर कील में लगी हुई होती है, जैसे खड़ी होती है वो कील चादर से खींच जाती है, उसका चेहरा इंकशाफ हो जाता है, चेहरा खुल जाता है, वो वहां पर आवाज देती है, वाह इस्लामा, हाय मेरा इस्लाम। मेरे भाई यहाँ पर नोट करें, वो अल्लाह के रसूल को नहीं बुलाती है, अपने बाप को नहीं बुलाती है, अपने भाई को नहीं बुलाती है, वो इस्लाम की दुहाई देती है, हाय मेरा इस्लाम। देखिए मेरे भाई, आज जो हमारे पढ़े लिखे लोग जिस बात को नहीं समझते हैं, वो साहबिया सिर्फ एक कलमे की वजह समझ गई थी कि कलमे का माना क्या। जब कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ने एक अल्लाह की इबादत और तरीका नबी का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा बनाने का। मेरे भाई ये साहबा का अमल है। क्या होता है रिएक्शन इसका? एक साहबा की आवाज पे मेरे भाई अल्लाह के साहबा एक साहबी आते हैं, वो यहूदी का गला कला करते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं वहां पर और पूरे कबीले को जो है मदीना से बाहर निकाल देते हैं। मेरे भाई ये वाकया मौजूद सीरत में जाके देख लीजिए आप लोग, एक सिर्फ चेहरे के पर्दे की वजह से। और आज हमारे भाई इल्ला माशाल्लाह, हमारी बहनें आज कहती है तकवा दिल में होना चाहिए, चेहरे का कोई जरूर नहीं। मेरे भाई आज वो हदीस भी शेयर करूंगा, आप जानते हैं उस हदीस को, लेकिन उसका माना एक है, लेकिन बहुत ब्रॉड माना बन जाता है उसका। एक साहबे के आके कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा जी चाहता है कि मैं अच्छा लिबास पहनूं और अच्छे चप्पल या अच्छे जूते पहनूं, मेरा जी चाहता है कि मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छे अच्छे जो है फुटवेयर पहनूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला पसंद करता है कि जो उसने तुम्हें दी है चीज, उसके आसार तुम पर नजर आए, जो तुम्हें दिया है उसके आसार तुम पर नजर आने चाहिए। यानी जी तुम पहनो, बिल्कुल अल्लाह ने तुम्हें दिया है, तुम्हें उसके आसार, उस अल्लाह की नेमतों के आसार नजर आने चाहिए तुम्हारे ऊपर। तो मेरे भाई अल्लाह ने जो चीज का हमें हुक्म दिया है उसके आसार नजर आने चाहिए हमारे ऊपर। ये नहीं है कि अल्लाह ने जो कुछ हमें दिया है हम उसको टिकट फॉर लेके बहाने बनाते बैठे। बहुत जरूरी है मेरे भाई, ये है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि हम जिनके लिए दुआ, जिनके रास्ते पर चलने की दुआ करते हैं, जब उसके बारे में दलील मिल जाए तो फिर मेरे भाई अमल में उतर जाना चाहिए, फिर हिले बहाने नहीं बनाना चाहिए। इसी तरह जब बंदा कहता है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, या अल्लाह उनके रास्ते पर मत चलाना जिन पर गजब किया गया और जो गुमराह हो गए, यानी यहूद और नसारा, द ज्यूज एंड द क्रिश्चियंस, तो फिर मेरे भाई उनसे बचना भी जरूरी है। लेकिन हमारा मामला आज क्या है? जो रास्ते पर चलना है उस पर नहीं चलते हैं, और जिन पर नहीं चलना है उससे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कहीं कुरान खानी हो गई, पहुंच जाते हैं, भाई क्या करें, रिश्तेदार है। कहीं नौज बिल्ला गैरुल्लाह के नाम पर कुर्बान वो दावतें हो रही है, देगे हो रही है, वहां पहुंच जाते हैं। कहीं कुछ और मामला, कहीं बर्थडे पार्टियां हो रही है, वहां पहुंच जाते हैं। बर्थडे पार्टियों में जाना दूर है, मुसलमान आज अपने घर में बर्थडे मनाता है। बर्थडे हो गई, मैरिज एनिवर्सरीज हो गई, और बेशुमार एनिवर्सरी जो हमने एनिवर्सरी शुरू कर दी हमने, फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे, पता नहीं कितने डेज हमने ले लिए हैं, जबकि हम भूल जाते हैं कि खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबियत करेगा उन्हीं में से है। फिर अमल कहाँ है हमारा? हमारे बच्चों की तरबियत हम देखें क्या हो रही है, इस्लामी तर्ज अमल पर हो रही है, या कुफारों के तर्ज अमल पर हो रही है, या गैरों के तर्ज अमल पर हो रही है। मेरे भाई ये सारी चीजें हमें नोट करनी चाहिए मेरे भाई। अगर हम अमल करते हैं तो हमारा घर भी इस्लामिक माहौल में बड़ा होना चाहिए। हाँ जरूरी है मेरे भाई, ये कुर्बानियां, ये कोई बड़ी कुर्बानी नहीं है। अगर हम साहबा इकराम को कंपेयर करें तो हमारी कुर्बानी कोई भी कुर्बानी नहीं, ये बिल्कुल हम जीरो लेवल पे चल रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह। नहीं मेरे भाई, आज वाकई कुर्बानियों का वक्त है। अगर आज हमने कुर्बानी नहीं दी, अपनी ख्वाहिशों को नहीं छोड़ा, अपनी ख्वाहिशों के ऊपर हमने कंट्रोल नहीं किया, तो मेरे भाई कल कयामत के दिन ये जो सवाल है, तो 5 सवाल किए जाएंगे, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा अपनी जगह से हिल नहीं सकता जब तक 5 चीजों का जवाब ना दे दे कि तुम्हारी उम्र तुमने कहाँ लगाई, तुमने इल्म पर कितना अमल किया, तुमने माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, और अपनी जवानी कहाँ लगाई। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 5 चीजों के आने से पहले गनीमत जानो, इग़तनिम खम्सा क़ब्ल खम्सिन,
کہ 5 चीजों के आने से पहले गनीमत जानो। हयात का कबल मौती का, अपनी हयात को, अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। वह सेहत का कबल सकम का, अपनी सेहत को बीमार होने से पहले गनीमत जानो, यानी सेहत को मौका उठा के इससे अमल करना शुरू करो। वह फराग का कबल शुगुली का, अपने फारिग वक्त को मसरूफ होने से पहले गनीमत जानो। अल्लाह ने कितना फारिग वक्त दिया मेरे भाई, आज हमें अल्लाह ने मौका दिया है, हर किसी के पास मौका है, इसको गनीमत जानो। वह शबाब का कबल हरमी का, और अपनी जवानी को बूढ़ा होने से पहले गनीमत जानो। वह गिना का कबल फकरी का, और अपनी गिना को, अपनी अमीरी को गरीब होने से पहले गनीमत जानो। मेरे भाई ये बड़ी बड़ी नेमतें जो अल्लाह ने दी हैं, हमारी सेहत, हमारी जिंदगी, हमारी जवानी, हमारा फारिग वक्त, हमारी अमीरी जो अल्लाह ने माल दिया मेरे भाई, ये सारी वो गनीमत है, वो नेमतें जो अल्लाह ने हमें दी है, इसको सही जगह लगाकर अमल में लाना मेरे भाई ये हमारे जिंदगी का मकसद होना चाहिए। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमें सही मानों में इस बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सही मानों में एक अमली मुसलमान बनाए, जो कुछ इल्म हासिल करे उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार।